So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be discussing the exercise of Unit 5 of the Indian Contract Act. So let's get started with the MCQs. The first question says that when prior to the due date of performance, the promisor absolutely refuses to perform the contract, performance की डेट से पहले ही अगर आपको इंटीमेशन मिल जाता है कि वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो दैट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीव पार्टी may treat the contract as per the first option as discharge and bring an immediate action for damages. Yes, it is applicable. As operative and wait till the performance arrives. This is also operative. So इस वाले केस में we can exercise either option A or either option B. Next question, in case of breach of contract, which of the following remedy is available to the aggrieved party? जब contract की breach होती है तो कौन सी remedy आपके पास available है? Suit for rescission, suit for damages, suit for specific performance, all of these. The answer is all of these. You are availed with all these remedies. Sometimes a party is entitled to claim compensation in proportion to the work done by him. It is possible by a suit for क्वांटम मेरिट, यानी कि वो उस पार्ट के लिए कॉम्पनसेशन मांगता है, उस प्रपोर्शन टू द वर्क के कॉम्पनसेशन मांगता है जितना काम उसने कर लिया है. दैट इज एज मच एज इज अर्नड, सो दैट इज एज पर द क्वांटम मेरिट. जनरली द फॉलोइंग डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल. कौन से डैमेजेस रिकवरेबल नहीं होते हैं? ऑर्डिनरी डैमेजेस रिकवरेबल इन द यूजुअल कोर्स, स्पेशल डैमेजेस रिकवरेबल अगर आप पहले से ही बता देते हैं, नॉमिनल डैमेजेस भी आपके रिकवरेबल होते हैं अगर आप ब्रीच करते हैं, रिमोट डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल. सो द आंसर इज सी, रिमोट डैमेजेस. 6. Damages which arise naturally in usual course of things from breach itself are called. जो कि naturally arise होते हैं usual course of things में, तो वो आपके जो है वो आपके general damages होते हैं. ठीक है. Next is A contracted to supply 200 bags of rice to B on 30th December 21. After supplying 20 bags of rice, A informed B that he will not supply remaining bags of rice to B. So इस वाले केस में ये आपकी एक actual breach of contract है कि वो उसी दिन जब परफॉर्मेंस ड्यू हो रही है उसी दिन वो आधी बैग्स को डिलीवर करके बोल रहे हैं. So this is actual breach of contract. The next question is where the contract orders the defaulting party to carry out the promise according to the terms of contract. तो ये आपका इंजंक्शन ऑर्डर है क्योंकि इसमें कोर्ट आपको ऑर्डर कर रही है. तो ऐसी रेमेडी जिसमें कोर्ट का ऑर्डर लगता है वो सिर्फ एक ही है जो कि है suit for injunction. Now quantum merit means non-gratuitous promise, no. A gratuitous promise, no. As much as is earned, this is right. So the answer is C option. Now wrongful dishonor of check by a banker having sufficient funds in the account of customer, the court may award vindictive or exemplary damages. The answer is vindictive or exemplary damages, जो कि सिर्फ दो कंडीशंस में आप मिलते हैं. पहला, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के लिए कोई रिफ्यूज कर देता है तो उनकी फीलिंग्स को इंजरी पहुंचती है, और दूसरी जब किसी बड़े ट्रेडर का जो चेक है वो wrongful dishonor हो जाता है. Now, descriptive question. An anticipatory breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed for performance is arrived. Anticipatory breach of contract ऐसी breach है contract की जो कि तब होती है जब time for performance होता नहीं है, उससे पहले ही intimate हो जाती है. तो इसके effects आपको बताने हैं as per the Indian Contract Act. तो इसके दो effect हो सकते हैं कि या तो aggrieved party उसी दिन contract को resign करके damages के लिए sue कर दे, या फिर वो wait करे date of performance तक का और डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर कर डैमेजेस को स्यू करे. सो दो ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होते हैं. एंटिसिपेटरी ब्रीच के ये दो इफेक्ट्स होते हैं. नाउ लिक्विडेटेड डैमेजेस इज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफ डैमेजेस फॉर सर्टेन एंटिसिपेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, whereas penalty on the other hand is an extravagant amount stipulated and is clearly unconscionable and has no comparison to the loss suffered by the parties explained. सो इस केस में आपको एक क्लियर डिस्टिंक्शन बताना है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, पेनल्टी क्या होती है, और डैमेजेस को डिस्कस करने के बाद, इनके डिस्टिंक्शन को डिस्कस करने के बाद आपको दोनों अप्रोच से इनको समझाना है एज पर द इंग्लिश लॉ एंड एज पर द इंडियन लॉ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि क्या क्या अप्रोचेस है दोनों लॉ के अकॉर्डिंग. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन 3 इज अ केस स्टडी जिसमें X जो है वो Y के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया है कि X Y को सप्लाई करेगा 1000 वाटर बॉटल्स, जिसमें हर वाटर बॉटल का प्राइस है ₹5. ठीक है, जो कि एक स्पेसिफाइड टाइम पर डिलीवर होंगे. तो इसकी वजह से X ने कॉन्ट्रैक्ट करा है Z से कि वो उससे परचेज करेगा 1000 वाटर बॉटल्स. कौन से प्राइस पर? 4.50 पर वाटर बॉटल. और सेम टाइम पर Z को ये भी बताता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए परफॉर्म कर रहा है क्योंकि Y को आगे इन बॉटल्स को पास ऑन करना है. Z इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, यानी कि वो 4.50 पर बॉटल्स को डिलीवर नहीं कर पाता है. कॉन्सिक्वेंटली X भी उन बॉटल्स को Y को डिलीवर फिर नहीं कर पाता. ठीक है. नाउ
कॉन्सिक्वेंटली एक्स कुड नॉट प्रोक्योर द वाटर बॉटल, और एक्स जब वाटर बॉटल नहीं डिलीवर कर पाया तो वाई ने एक्स के साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया. नाउ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच एक्स कुड क्लेम फ्रॉम जेड इन द सर्कमस्टांस. सो ऑब्वियसली एक्स ने जो पहले से ही बता रखा था जेड को कि अगर तुम मुझे बॉटल सप्लाई नहीं करती हो तो मैं आगे सप्लाई नहीं कर पाऊंगा वाई को. तो वो कितने पैसे मांग सकता है, वो उससे मांग सकता है अ टोटल ऑफ मार्केट प्राइस क्या है वाटर बॉटल का ऑन दैट डे 5.25. तो उसे पहले तो लॉस कितने का होगा, उसे लॉस हो रहा है 0.50 का, प्रॉफिट का लॉस हुआ है उसे, और साथ ही साथ 0.25 पर उसे एक्स्ट्रा खरीद के देनी पड़ेंगी, तो 0.25 का भी हुआ है. तो 0.50 प्लस 0.25 विच इज 0.75. सो 0.75 इंटू 1000 वाटर बॉटल्स, उतने पैसे उसको देने पड़ेंगे. नाउ व्हाट वुड बी योर आंसर इफ जेड हैड नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द वाइज कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो वाई को कॉन्ट्रैक्ट का नहीं बता पाता तो उसे फिर कितने पैसे मिलते. तो वो सिर्फ उसे प्रॉफिट के लॉस का नहीं देता, वो उसे जो उसे प्रॉफिट का लॉस हुआ है उसके लिए उसे कॉम्पनसेट नहीं करता, वो सिर्फ 0.25 इंटू 1000 कर देता, क्योंकि मार्केट प्राइस 5.25 है और उन्होंने डिसाइड करा था कि वो वाटर बॉटल खरीदेगा 4.50 पे, तो वो इनके डिफरेंस के लिए कॉम्पनसेट करेगा. सो इसका अमाउंट हम देख लेते हैं. सी इट इज रिटन कि देयरफॉर एक्स इज एंटाइटल्ड टू क्लेम ₹500 at the rate of 0.50, that is 1000 water bottles into 0.50 पैसे, difference between the procuring price of the water bottle and contracted selling price to Y. ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है साथ में. ठीक है, अगर एक्स इन्फॉर्म नहीं करता जेड को वाई के कॉन्ट्रैक्ट से तो उसे 750 रुपीज देने पड़ते इन 0.75 पैसे. 0.75 कैसे बने, 0.50 प्लस 0.25. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी. जो केस स्टडी इंपॉर्टेंट है और ये एक बार पेपर में भी आई हुई है. सो यू हैव टू understand this case study very briefly. So I hope you are able to understand it कि किस तरीके से X और Y के compensations और damages decide हुए हैं. So thank you so much for watching this video.